شبیر نے کچھ دنوں پہلے بورےوالا کی نواحی بستی بھٹا یوسف آباد میں ایک ایسے مزدور گھرانے کی لڑکی کو دیکھا ہے جو ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ 18 سالہ اقصیٰ چھوٹے سے کمرے میں ایک میز پر کپڑا بچھا کر استری کر رہی تھی کہ اچانک استری خراب ہو گئی اور اقصیٰ کو زوردار کرنٹ لگا تو وہ چیخ مار کر میز سے دور ہو گئی۔ اقصیٰ کی چیخ سن کر اس کی ماں گھبرائی ہوئی آنگن سے کمرے کے قریب آ گئی جہاں اقصیٰ استری کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ امی مجھے بہت زور سے کرنٹ لگ گیا، یہ پلگ تو نکالے۔ ماں نے سوئچ آف کر دیا جس کے بعد اقصیٰ نے گرما گرم استری کو کپڑے سے الگ کرنا چاہا تو وہ چپکی ہوئی تھی اور کپڑا بالکل جل چکا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، میں نے ابا سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ تیری ٹھیک کروا لے لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے میرا ہاتھ جل گیا اور کرتا بھی جل گیا ابا کا۔ شکر کر تیری جان بچ گئی، اب صدقہ نکالنا پڑے گا۔ ہاں بہت جلن ہو رہی ہے۔ یہ لائٹ تو چلی گئی؟ ہاں لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اب چیک کروانا پڑے گا۔ ارے میں وہ کامران کو بلا کر لے آتی ہوں، وہ بجلی کا کام جانتا ہے۔ کون کامران؟ وہ جو پچھلی گلی میں رہتا ہے؟ ارے ہاں تو رک میں لے کے آتی ہوں اس کو۔ ہاں اقصیٰ کی ماں سر پر چادر ڈال کر گھر سے باہر نکلی اور اقصیٰ استری کے پیندے کی صفائی کرنے لگی۔ ادھر جب اقصیٰ کی ماں ایک گلی میں پہنچی تو کامران نامی الیکٹریشین موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کامران بیٹا، ارے میری بات سن بیٹا۔ کیا ہوا خالہ؟ بیٹا وہ گھر میں نا بجلی چلی گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، دیکھیں ذرا۔ آپ چلو میں آتا ہوں۔ کیا بیٹھو، آپ دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہو گیا۔ ہاں بیٹا یہاں سے موڑ لے۔ کامران اور اقصیٰ کی ماں موٹر سائیکل پر گھر پہنچے تو کامران موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کرنے لگا اور ماں اندر چلی گئی۔ اچھا بیٹا پردہ کر لے، بجلی والا آ رہا۔ کامران بیٹا اندر آ جا۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ پتہ نہیں لائٹ چلی گئی، یہ استری کر رہی تھی اچھا کیا ہوا تھا بتا بیٹا۔ وہ میں استری کر رہی تھی نا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی اور مجھے بہت زور سے کرنٹ بھی لگ گیا اور ابا کا کرتا بھی جل گیا۔ چنگاریاں نکلی تھی؟ ہاں تھوڑی بہت۔ مین سوئچ بند ہے؟ ہاں وہ میں نے بند کر دیا تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کوئی پیچکس ہو تو دیں۔ ارے بیٹا ڈھونڈنا پڑے گا، اچھا میں دیکھ کے لاتی ہوں۔ اقصیٰ نے تھوڑی کوشش کے بعد پیچکس تلاش کیا اور پردے سے ہاتھ نکال کر پیچکس کامران کے حوالے کر دیا۔ پردے سے اقصیٰ کا ہاتھ باہر نکلا تو کامران اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے پیچکس لیتے وقت اقصیٰ کے ہاتھ کو چھوا تو اقصیٰ نے تیزی سے ہاتھ اندر کھینچ لیا۔ اس واقعے کے بعد اقصیٰ اور کامران کے درمیان پسندیدگی کے رشتے نے خاموشی سے جنم لے لیا۔ اقصیٰ کسی نہ کسی طرح کامران سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ کامران کسی کے گھر میں بجلی کا کام کر رہا تھا کہ اقصیٰ کا فون آ گیا۔ کس طرح کے پلگ آ گئے، کوئی نٹ بھی باہر نہیں ہوتا۔ ہیلو ہیلو جی میں اقصیٰ بول رہی ہوں۔ تو جناب آئے تھے نا ہمارے گھر پہ بجلی ٹھیک کرنے۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی نگاہوں کے سامنے وہی منظر آ گیا جب وہ اقصیٰ کی کلائیوں کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا وہ جو استری خراب ہو گئی تھی؟ جی اماں بلا کر لائی تھی نا آپ کو۔ ہاں میں سمجھ گیا، جی بولیں۔ وہ ہمارے گھر کی نا پھر سے لائٹ چلی گئی، مجھے لگتا ہے تار جل گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں آ کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ جی بس ٹھیک ہے، میں آنے سے پہلے آپ کو فون کر دوں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون کے بعد کامران کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اقصیٰ کی کلائیاں ابھر رہی تھیں۔ کامران اور اقصیٰ ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چلے تھے اور شادی کے لیے بے چین تھے۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اقصیٰ اور کامران فون پر بات کر رہے تھے۔ اچھا سنو، بتاؤ اب کیا کرنا ہے، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
तुम अपनी माँ को बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, फिर मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अब्बा को नहीं जानते, बहुत तेज है वो गुस्से के, मुझे कत्ल कर देंगे। अच्छा फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ये कोर्ट मैरिज कैसे होती है? मुझे क्या पता, मालूम करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं। तुम घर से गायब होगी तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम क्यों बहानेबाजी कर रहे हो? साफ साफ कह दो ना कि दिल भर गया तुम्हारा मुझसे। पागल हो क्या? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिनों के बाद अक्सा और कामरान ने छुपकर शादी कर ली। अक्सा के बाप को मालूम हुआ तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अक्सा का बाप कामरान का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, जिस पर कामरान का बाप घर से बाहर निकल आया। अरे नज़र खैरियत? यार तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और तुम मुझसे पूछो खैरियत? कहाँ है ये दोनों? अरे मुझे नहीं पता, आओ अंदर बैठो ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मुझे मेरी बेटी वापस करो। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है, खुदा ना खासा सबको पता चल जाएगा। अब शादी तो कर ही ली है, अब क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि मुझे मेरी बेटी वापस करो, मैं इज्जत के साथ उसे रुखसत करूंगा। और ये मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत रखो यार। नियाज भाई तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तलाश करता हूँ दोनों को, और जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा इंशाल्लाह। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत रखो। इस वाक़े के बाद महल्ले की पंचायत के सामने ये फैसला किया गया कि कामरान अक्सा को उसके वालिदैन के यहाँ भेज देगा और फिर 1 हफ्ते में उसकी रुखसती कर दी जाएगी। शब्बीर ने देखा कि अक्सा का बाप अपनी बेटी को गले लगाकर रो रहा था। मेरा बेटा रो मत, बस चुप हो जा। अगर ऐसी बात थी तो तू अपने माँ बाप को तो बताती ना बेटा, हम तुझसे कितना प्यार करते हैं बेटा। हम दोनों तुम्हें खुद अपने हाथों से रुखसत करते। चलो जो होना था वो तो हो गया ना, बस ये खुशी की बात है कि हमारी बच्ची हमारे घर आ गई। बेटा जा अंदर जा, शाबाश। अब तुम ऐसा करो, वहां जाओ, रुखसती की बात करो और तारीख लेकर ही आना। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं इंशाल्लाह जाता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो तारीख लेके ही आऊंगा, ठीक है? उसी शाम शब्बीर ने देखा कि अक्सा की माँ खाना पका रही थी और अक्सा फोन पर कामरान से बात कर रही थी। बाप की आमद का पता चला तो उसने जल्दी से फोन काट दिया। अच्छा कामरान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह। अरे क्या हुआ, क्या तारीख दी उन्होंने? माशाल्लाह 8 तारीख दी, इंशाल्लाह बेटी को 8 तारीख को रुखसत कर देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये काम भी नहीं बन गया। खुश रहना बेटा। अच्छा मैं बर्तन तो धो लूं, जो रह गए थे ना वो भी धो लूं। रुखसती की मुकर्ररा तारीख पर शब्बीर ने जो मंजर देखा वो बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। शब्बीर ने देखा कि अक्सा अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। अक्सा का बाप अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव बावर्ची खाने में पहुंच गया। उसने बर्तनों के बीच में से छोटी सी छुरी तलाश की और उसे कपड़ों में छुपाकर अक्सा का दरवाजा खोलते देखा गया। अक्सा के बाप ने उसकी बेटी को उसके शौहर के पास रुखसत करने के बजाय उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया था। अपनी बेटी का गला काट कर सफाक बाप कहीं रुपोश हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह है वो कमरा जहां अक्सा को उसके बाप ने इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया था, और ये है 18 साल अक्सा जो अपनी आंखों में प्यार का ख्वाब सजाए इस दुनिया से रुखसत कर दी गई थी। अक्सा का शौहर
इस सानहे पर इंतहाई खौफजदा था। अपनी बेगम को मैंने उनके घर वालों को वापस कर दिया था और उन्होंने वादा रुखसती का वादा 8 तारीख किया था कि हम इसको रुखसत कर देंगे। उन्होंने मेरी बेगम को कत्ल कर दिया है और मेरी आपसे ये अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी जान को खतरा है और मेरे मुलज़मान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चंद दिन पहले इंतहाई दिलखाश वाक़या हुआ बूरेवाला में, जिसमें बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। आइए हम सबको मिल बैठकर ये सोचना है कि ऐसे वाक़यात का सद्जवाब कैसे हो। इसके लिए उलमा इकराम, ताज़ा इकराम और हुक्मरानों को मिल बैठकर कौमी सतह का प्रोग्राम देना चाहिए। ऐसा प्लान हो जिसके तहत हम ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए मुआवन शामिल हों। ये है उस सफ़ाक बाप की तस्वीर जिसने अपनी बेटी की जायज़ ख्वाहिश को हरामकारी समझा और बेटी का गला काट दिया। पुलिस ने बूरेवाला की नवाही आबादी भट्टा यूसुफाबाद गली नंबर 5 में पेश आने वाले बर्बरियत के इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जैसे ही ये इंसिडेंट हम पुलिस को रिपोर्ट हुआ, हमने FIR की और फौरी तौर पे टीम तश्कील की और अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरी एफर्ट करके मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया, वेपन रिकवर कर लिया। और इससे सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने PPC का सेक्शन 311 ऐड किया है ताकि बाद में कोई भी इसकी सुलह न कर सके। बाप के हाथों सफ़ाकी का शिकार होने वाली मकतूला अक्सा की 3 बहनें और 4 भाई थे। अक्सा दरमियान में थी। शब्बीर ने बूरेवाला के इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और अक्सा के कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। शब्बीर ने मुल्तान में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपने 4 माह के बच्चे से शदीद मोहब्बत करती थी और उसे एक पल के लिए आंख से ओझल नहीं होने देती थी। ये मंजर जो आप देख रहे हैं मुल्तान में एक जमींदार के खुले सहन का मंजर है। जमींदार के पास मुलाजिम ये शख्स जो मवेशियों की देखभाल कर रहा है शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। जमींदार के घर मुलाजिम इस शख्स की बीवी शाहीन बीबी भी अपने शौहर के साथ काम करती है। ये मेहनतकश जोड़ा काफी दिनों पहले मजदूरी की तलाश में गुजरात से मुल्तान आया और फिर यहीं मुलाजमत कर ली। आप देख सकते हैं कि दोनों मियाँ बीवी इंतहाई जांफशानी से काम काज कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 माह है, इसका नाम असद है और ये अपने माँ बाप का लाडला बेटा है। दोनों ही इससे बेपनाह प्यार करते हैं। ये देखिए, बच्चा बाप की गोद में है। मेहनत मजदूरी करती हुई माँ को इल्म है कि बच्चा भूखा है। एक मेले से फीडर में पानी मिला दूध ही इस बच्चे की ग़िज़ा है। गुर्बत और मुफलिसी के बावजूद दोनों मियाँ बीवी शब्बीर को अपने हाल में मस्त नजर आए। शाहीन बीबी, उसका शौहर और दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं। इसी आंगन की एक खोली में इनका ठिकाना है। ये शाहीन बीबी का बड़ा बेटा है जिसके पाँव में चप्पल तक नहीं है। एक दिन हुआ ये कि शाहीन बीबी और उसका शौहर हस्ब मामूल मेहनत मजदूरी में मसरूफ थे कि शाहीन बीबी को महसूस हुआ कि उसका 4 साला बड़ा बेटा बीमार है। वही बेटा जिसे आपने अभी फुटेज में नंगे पांव देखा था। बेटे की बीमारी का एहसास होते ही उसकी माँ घबरा गई। मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या हुआ उसे? सुबह से बुखार है। तू मुझे अभी बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया? चला देखते हैं उसे। ये देख, इसको कितना तेज बुखार हो रहा है। हाँ, तो बहुत तेज हो रहा है। तू ऐसा कर, अंदर जा, प्याले में ठंडा पानी लेकर आ, पट्टियां कर सर पे इसकी, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा इसका। जा जल्दी जा। अच्छा। बाप अपने बेटे को लेकर दरख्त की छांव में बैठ गया और उसकी बीवी अपने दुपट्टे को भिगोकर 4 साला बेटे के सर पर रखती रही। बेटा कैसा लग रहा है अब? नहीं अम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? तुम ना सो जाओ, उठोगे ना तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत तबीयत खराब है, क्या करूं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। ऐसा करते हैं, इसे मुल्तान ले चलते हैं। वहाँ बच्चों को बहुत अच्छा अस्पताल है, वहाँ दिखाते हैं डॉक्टर को। हाँ, लेकिन यहाँ जो इतना काम पड़ा है वो कौन करेगा?
हाँ ये तो है। अब ऐसा करती हूँ कि मैं इसे और छोटे को ले जाती हूँ अस्पताल, तुम ना ये सारा काम कर लेना पीछे से। हाँ ठीक है। अच्छा देख, ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? तो छोटे का भी ध्यान रखना। शाहीन बीबी अपने बेटे अनस को लेकर अस्पताल गई तो 4 माह के बेटे असद को भी गोद में उठाकर ले गई। शब्बीर ने देखा कि उस दिन मुल्तान शहर में हस्ब मामूल ट्रैफिक गुजर रहा था। सड़क पर रक्षा बस और दीगर सवारियां भी मौजूद थी। रास्ते में शाहीन बीबी को एक मज़ार नजर आया तो वो अपने बच्चे की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगी। कुछ देर में वो इस अस्पताल में पहुंच गई जो आपको फुटेज में नजर आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शब्बीर ने देखा कि शाहीन बीबी एक बेंच पर बैठी हुई थी। 4 माह का असद उसकी गोद में था और बड़ा बेटा जो बीमार था निढाल होकर माँ की गोद में सर रखे हुए था। माँ बार बार बेटे की पेशानी छूकर अंदाजा कर रही थी कि उसका बुखार उतरा कि नहीं। फिर अचानक उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हुए। इसी दौरान एक और औरत शाहीन बीबी के बराबर में आकर बैठ गई। उसकी गोद में भी कमोबेश एक 4 माह का बच्चा था। अरे बहन, क्या हो तुम्हारी बच्चा बीमार है क्या? अरे नहीं, इसकी तबीयत ठीक है। मेरे ना बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हो रहा है। मैं सुबह से अस्पताल में आई हूँ, लाइन इतनी लंबी लगी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अल्लाह राम करे, मेरा बच्चा बीमार, मेरा शोर भी लाइन में लग के पर्ची बनवा रहा। आप ऐसे करो, छोटे वाले को मुझे दे दो, आप भी लाइन में लग के पर्ची बनवा लो। चलो, ऐसी कोई बात नहीं है, रोएगा मैं आपको आवाज दे दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। मैं ना बस अभी 2 मिनट में आई। शाहीन बीबी ने अपना 4 माह का बच्चा अजनबी औरत के हवाले कर दिया और बड़े बेटे को लेकर पर्ची बनवाने चली गई। शाहीन बीबी पर्ची बनवाकर वापस आई तो वो अजनबी औरत शाहीन के 4 माह के बेटे समेत कहीं गायब हो चुकी थी। अस्पताल वालों को खबर हुई तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा बच्चा। शब्बीर ने देखा कि शाहीन बीबी अस्पताल के एक कमरे में बैठी रोए जा रही थी। उसका बड़ा बीमार बच्चा अपनी माँ के साथ था। मेरा बच्चा। इसी दौरान एक वार्ड बॉय अंदर दाखिल हुआ। शाहीन बीबी आपका नाम है? जी, मैं हूँ। मेरा बच्चा मिल गया। देखा आपने? हमने कैमरे में देखा है, आप परेशान मत हो। आपका बच्चा कितना बड़ा है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरा बच्चा मिल गया। देखा आपने? हमने कैमरे में देखा है, आप परेशान मत हो। आपका बच्चा कितना बड़ा है? मेरा बच्चा तो गोद में है, 4 माह का है। अच्छा, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ हैं, आपको सर बुला। शाहीन बीबी अपने बेटे की उंगली पकड़े जल्दी जल्दी वार्ड बॉय के साथ अस्पताल के अफसर के कमरे में पहुंच गई। जी शाहीन बीबी आपका नाम? जी डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम ज़रा परेशान मत हो, बैठो, जाओ उनका बच्चा लेकर आओ। मेरा बच्चा। वार्ड बॉय एक 4 माह के बच्चे को लेकर आया और शाहीन बीबी के हवाले कर दिया। शाहीन बीबी ने फौरन बच्चे को खुद से चिमटा लिया, लेकिन अचानक जब उसकी नजर बच्चे के चेहरे पर पड़ी तो चीख मारकर बच्चा एक तरफ रख दिया। डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा नहीं है। आपका बच्चा मिल तो गया? नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ लेके औरत। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। कहाँ ले गई वो औरत? प्लीज मेरा बच्चा कहाँ चला गया? शाहीन की हालत देखकर अस्पताल का अमला सोच में पड़ गया और समझा कि बच्चे की आखिरी गुमशुदगी की वजह से शायद माँ के जहन पर असर हुआ हो। अफसर ने शाहीन बीबी को पानी पिलवाया और इशारे से बच्चे को वहां से ले जाने के लिए कहा। शाहीन बीबी ठीक कह रही थी कि जो बच्चा उनको दिखाया गया था वो उनका बच्चा नहीं था। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने मिलने वाले बच्चे को लावारिस करार देकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवा दिया था और शाहीन बीबी के 4 माह के बच्चे की
तलाश जारी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक शख्स उसी अस्पताल में वार्ड बॉय से एक 4 माह के बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। आपने एक हफ्ते पहले कोई 4 माह का बच्चा देखा? वो यहाँ गुम हो गया था। हाँ देखा तो था, लेकिन वैसे आप कौन? भाई वो बच्चा जो है मेरा ही था, वो इधर उधर हो गया था। तो कहीं आप शाहीन बीबी के शौहर तो नहीं? शाहीन? नहीं, मैं शाहीन का शौहर नहीं। उस शख्स की बातों से वार्ड बॉय को शक हुआ और वो समझ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला था, लेकिन उसने चेहरे के तासुरात से जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा फिर आप एक काम करें, मेरे साथ है, मैं अपने ऑफिसर से आपको मिलवाता हूँ, वो आपको इसके बारे में सही बात आप रहने दें ऑफिसर को, आप ये बता दें मेरा बच्चा कहाँ है? वो तो शायद हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन में पहुँचा दिया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन में पहुँचा दिया? जी। चलें भाई, फिर मेहरबानी है। अच्छा आप एक काम करें, मेरे साथ है, आ जाइए। वार्ड बॉय उस अजनबी शख्स को अपने साथ ले गया, जहां एक और नई कहानी सामने आ गई। ये अजनबी शख्स जो एक 4 माह के बच्चे को पूछ रहा था, उस औरत का शौहर था जो शाहीन बीबी का बच्चा लेकर गायब हो गई थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि बच्चे को अगवा करने वाली औरत खुद 4 बच्चों की मां थी। 16 साल बाद उसने जिस बेटे को जन्म दिया था, बीमारी में मुब्तला हो गया था और वो बेटे के इलाज से मायूस हो चुकी। उस रोज वो शाहीन बीबी के 4 माह के बच्चे को अगवा करके साथ ले गई थी और अपने 4 माह के बेटे को अस्पताल में लावारिस छोड़ गई थी। पुलिस ने छापा मारकर अगवा करने वाली यास्मीन नामी औरत और उसके शौहर और भांजे को गिरफ्तार कर लिया था और शाहीन बीबी के बच्चे को बरामद कर लिया था। ये है वो औरत जिसने अपने बीमार बेटे को अस्पताल में लावारिस छोड़कर इसी उम्र के एक और बच्चे को अगवा कर लिया था। मैंने भी नहीं पता मैं क्यों कर बैठी है, वजह तो कोई भी नहीं थी, ना की करना थी ना कर अगवा करने वाले हमने तो 10 दिन में बच्चा बना के तो ना पाल दो। बहुत ज्यादा पेट तड़पी गई अपने बच्चे से, पता नहीं फिर अपना उत्थे छाड़ता उधर लेके चले। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये आई और इनका अपना बच्चा जो था वो स्किन की एलर्जी में मुब्तला था पैदाइशी तौर पे। उनकी बेटी पहले भी जो है वो 15-16 साल की इसी बीमारी में मुब्तला है। तो इन्होंने अब वो अपना बच्चा हॉस्पिटल में छोड़ दिया 5-6 माह का, और इस खातून से धोखाधड़ी से बच्चा लेके कि मैं बच्चा उठाती हूँ आप पर्ची ले लें, ये इनका बच्चा लेके यहाँ से अपने भांजे के साथ ये बता रही है, ये यहाँ से फरार होगी अगवा करके। क्योंकि ये एक संगीन नौयत का मुकदमा है और इस मुकदमे में चूंकि एक वालदा को मुतय्यब बनाया गया और उसके ट्रेस करने के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई। उस टीम ने अपनी मेहनत करके 10 दिन के अंदर इस मुगवी बच्चे को दुनियापुर रेड करके बरामद किया और इसमें वो जो मुलजिमा है एक यास्मीन नाम की औरत, उसको और उसके खामद रमजान को गिरफ्तार किया और इस बच्चे को बरामद करके उसकी वालदा के हवाले किया गया। जब हमने इसको डिटेल में देखा तो डिटेल में देखने से ये मालूम हुआ कि इस औरत का अपना भी एक 4 माह का बेटा था, वो उसी दिन उसको अस्पताल में छोड़ गई थी। अब बेसिकली वो बच्चा हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया था। उनका अपना एक ज़ाब्ता तरीकाकार है, वो किसी भी आदमी को जो कि ख्वाहिशमंद हो, लावलद हो, उसको वो देंगे। शाहीन बीबी को उसका बच्चा मिल गया तो जैसे दोबारा जी उठी। शब्बीर 4 माह के असद की मां के पास पहुंचा तो वो और उसका शौहर हस्बे मामूल मेहनत मजदूरी में मसरूफ थे और अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थे। आपको मेहरबानी है सारा बच्चा वापस कराने, लख लख शुक्र अदा करने। मैं पर्ची लाने लग गई तो मैनू आंदी पई काका मैनू दे चा ते तू पर्ची ला ले, जल काका ने लाया तो फिर गायब हो गई। फिर मैं मुलाजम नु आखिया मी सिक्योरिटी गार्ड दे गई, उस नु आखिया मी उस वाल थाने तो फोन किया, फोन करते उस वाल थानेदार नु दवाया, थानेदार वाल मेरे को सारी बयान लाया तो फिर उन्हें मेरे नाल गल की, उन्हें पर्चा की, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि बच्चे को अगवा करने वाली औरत और उसके शौहर को जेल भिजवा दिया गया है, जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश जारी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने पिंड दाद खान के नवाही कस्बे कसलिया में एक ऐसे शख्स को देखा है
जिस के लिए एक कदम चलना भी मुहाल है। 42 साला मोहम्मद बशीर कौन है, क्या करता है, कैसे जिंदगी बसर करता है? शब्बीर इस खोज में गांव कसलियां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। 42 साला मोहम्मद बशीर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठकर आगे खिसकने की कोशिश कर रहा था। अपने पूरे वजूद को घसीटने के लिए उसे जो मशक्कत करनी पड़ रही थी वो नाकाबिले बयान थी। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बशीर पर जिंदगी का एक एक लम्हा कितना भारी होगा। शब्बीर की नजर मोहम्मद बशीर के घर पर पड़ी तो वो कांप उठा। दीवारें सीलन ज़दा थीं, कहीं काई जमी हुई थी और दीवारों पर प्लास्टर का नामो निशान तक नहीं था। शब्बीर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मोहम्मद बशीर से उसकी जिंदगी की कहानी दरियाफ्त करे, क्योंकि उसकी कहानी उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। उसके घर के दरो दीवार चीख चीख कर कह रहे थे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। मोहम्मद बशीर के घर के बाहर की दुनिया क्या थी, शब्बीर को मालूम ही नहीं था। फिर शब्बीर खामोशी से मोहम्मद बशीर के कमरे में बैठ गया, जहां वो रात को आराम करता है। इस कमरे में मैली सी चादर वाला बिस्तर था, लेकिन सलीके से था। घर में मौजूद कुछ बर्तन रखे हुए थे। उस कमरे की तरतीब देखकर शब्बीर के जहन में गुमान पैदा हुआ कि बशीर की कोई बीवी भी होगी, बाल बच्चे भी होंगे, क्योंकि कमरे की इस तरह की सफाई सुथराई बशीर का काम नहीं लग रहा था। वो तो चलने फिरने से भी माजूर था। अभी शब्बीर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आंगन में शब्बीर को एक औरत दिखाई दी जो खुद बशीर की तरह माजूर नजर आ रही थी। तो क्या बशीर पर तरस खाकर किसी ने अपनी माजूर बेटी बशीर को दे दी थी? शब्बीर बशीर के कमरे से बाहर निकला और इस तरह के आलम में आंगन में आ गया, जहां न जाने कब का ईंटों का चूल्हा मौजूद था, पानी का ड्रम, लकड़ी का नापुख्ता दरवाजा। मोहम्मद बशीर कैसे जिंदगी की गाड़ी खींचता होगा? इन सवालों के साथ शब्बीर खामोशी से एक बार फिर मोहम्मद बशीर को देखता रहा। वो पूरा जोर लगाकर अपनी तिपाई को खिसका रहा था तो उसका रुख घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ था। इस दरवाजे की सिर्फ चौखट थी जिसमें से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। शायद ये कोई छोटी सी दुकान थी। शब्बीर का यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। शब्बीर ने देखा कि बशीर किसी न किसी तरह दुकान के अंदर पहुंचा तो एक नौजवान 45 साला बशीर के भारी भरकम वजूद को उठाकर चारपाई पर डाल रहा था। शब्बीर ने देखा कि जब बशीर को चारपाई पर बिठाया गया तो उसके चेहरे पर कुछ सुकून के आसार नुमाया हुए। ये एक दुकान थी जो बशीर ने अपने घर के अंदर ही खोल रखी थी। दुकान की हालत भी खस्ता थी। आखिर लोगों को सामान किस तरह देता होगा? वो तो अपनी जगह से आसानी से खिसक भी नहीं सकता था। शब्बीर अभी इसी सोच में था तो उसने देखा कि महल्ले के कुछ बच्चे उसकी दुकान में आए और खुद ही अपनी पसंद की चीजें उठाकर ले गए। अब शब्बीर को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी कि मोहम्मद बशीर अपनी गुजर औकात के लिए छोटी सी दुकान चलाया करता था। लेकिन सवाल ये था कि मोहम्मद बशीर क्या पैदाइशी तौर पर माजूर था या बाद में किसी हादसे का शिकार हो गया था, और ये भी कि उसने इलाज क्यों नहीं कराया। कुछ ही देर में बशीर के एक पड़ोसी से वहीं दुकान में शब्बीर की मुलाकात हुई तो शब्बीर को पड़ोसी ने बताया 17 बरस की ऐन जवानी के आलम में उसे ऐसी बीमारी लाहक हुई जिससे बशीर माजूर हो गया। अपने पराए सब अजनबी हो गए और बशीर अपनी तकदीर से लड़ता रहा। ये है वो पड़ोसी। बशीर साहब घर के दो फर्द हैं, एक बशीर और एक इनकी हमशीरा, और अलमिया ये है कि ये दोनों माजूर हैं और अरसे 25 साल से मोहम्मद बशीर अपनी मदद आपके तहत एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये मकरूज हो गए हैं। और इसके साथ मोहम्मद बशीर अपना और अपनी बहन का इलाज भी नहीं करा सकते। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील है कि मोहम्मद बशीर साहब की माली मावनत भी की जाए और इन दोनों का इलाज भी कराया जाए। मोहम्मद बशीर की कहानी बड़ी दर्दनाक है। 17 बरस की उम्र में माजूर हो गया था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई शादी करके अपने बाल बच्चों में मगन हो गए थे। बाप जब तक जिंदा रहा अपने बेटे का ख्याल रखता रहा, मगर फिर वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वो औरत जो शब्बीर को बशीर के घर में दिखाई दी थी वो बशीर की बीवी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी, सरदारा बीबी। सरदारा बीबी की शादी माँ बाप की मौजूदगी में हुई थी। उसके 2 बच्चे हुए और फिर सरदारा बीबी भी एक बीमारी में मुब्तला होकर माजूर हो गई। सरदारा के शौहर ने अपनी बीवी पर रहम नहीं खाया। उसका सहारा बनने के बजाय अपनी माजूर बीवी को उसके माजूर भाई के पास छोड़कर कहीं गायब हो गया। वो दिन है और आज का दिन। 25 बरस से मुसलसल माजूरी की जिंदगी गुजारना कोई खेल नहीं है, मगर मोहम्मद बशीर एक साबिर और शाकिर इंसान है। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अलबत्ता एक बार शदीद बारिश हुई तो घर और
اور محمد بشیر کو فریاد کرنی پڑی کہ خدا کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ ہم گھر کے 2 فرد ہیں اور دونوں معذور ہیں، اور عرصہ 25 سال سے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر اسی سے گزر بسر کر رہے ہیں، اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہماری دکان میں بھی کافی نقصان ہوا ہے اور گھر میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، جس وجہ سے ہم مقروض ہو گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا علاج بھی کرائیں اور ہماری مالی مدد بھی کریں، جس سے ہم عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ شبیر نے مخیر حضرات، امدادی اداروں اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ کرونا زدہ اس ماحول میں محمد بشیر کی سنی جائے، اس کی مدد کی جائے، اسے خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اس کا قرض چکایا جائے، تاکہ پاکستان کا یہ محنت کش غریب انسان عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا۔ ملک بھر سے مزید کہانیوں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB